गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हम टॉपिक में बेस कंसीडर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड इज अ जेनेरिक प्रोसेस combining the power of the scientific method combining the power of scientific method with the use of concept and principle of analytical method commonly used in clinical species। इस कॉन्सेप्ट को हम किस ओर लेके जाएंगे? एनालिटिकल मेथड के कॉन्सेप्ट को क्लिनिकल एनालिसिस की ओर लेके जाना है। तो इसमें बोल रहा है कि एनालिटिकल मेथड इज जेनरिक प्रोसेस और कंबाइनिंग द पावर ऑफ साइंटिफिक मेथड। दोनों को हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जो है यूज ऑफ फॉर्मल प्रोसेस to solve any type of problem it has these 9 steps. First is identify the problem to solve. फर्स्ट 9 स्टेप्स में हम देखेंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम टू सॉल्व। सबसे पहले प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, चूज इन एप्रोप्रिएट प्रोसेस। चूज करना है हमको एप्रोप्रिएट प्रोसेस। नाउ थर्ड स्टेप इज use the process to hypothesize. Third is use the process to hypothesize analysis or solution element. Analysis and solution element. Now again fourth step is design in experimental to test का हम डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे। टेस्ट इन एक्सपेरिमेंटल टू टेस्ट hypothesis. Now fifth step is perform the experiment. Now next is accept, reject or modify the hypothesis. Accept, reject or modify the hypothesis. Again repeat steps number 3, number 4 and number 5 and number 6. The hypothesis is accepted. The hypothesis is accepted. Now 8 number, implement the solution. Implement the solutions. Again 9 number, continuously improve the process.
continuously improve the process. This is a 9 steps of any problem solving to analytical method. नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पर जो भी प्रॉब्लम है वो वर्कआउट करेगा। एनालिटिकल आइडिया एंड फाइंडिंग आर ऑफ्टन सरप्राइजिंग। एनालिटिकल आइडियाज एंड फाइंडिंग are often surprising. Suitable and technically suitable and technically complex for principle. Four principles apply to all analytics. वो कौन कौन से 4 प्रिंसिपल हैं जो अप्लाई होता है एनालिटिक्स पर। कम्युनिकेशन रिगार्डलेस ऑफ ऑडियंस आर communications regardless audience are medium. These principles are clarity first, second is a transparency, again integrity, now next and humility. Four principles apply to all analysis. Communication regardless of audience are medium. These principles are clarity, transparency, integrity and humility. Main kinds of analytics. First is a descriptive, second is a diagnostic, third is a predictive and fourth is a prescriptive. क्लिनिकल एनालिसिस में इसका एनालिटिकल मेथड का जो प्रिंसिपल यूज़ हम कर रहे हैं वो क्लिनिकल एनालिसिस में हम किस लिए करेंगे। मेन काइंड्स ऑफ एनालिटिक्स में डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। तो हम डायग्नोस्टिक की स्टडी जो है क्लिनिकल एनालिसिस में करेंगे। क्लिनिकल स्पीसीज को एनालाइज करने के लिए करेंगे। The most common specimen used in clinical species. The most common used in specimen in clinical chemistry
आर ब्लड यूरिन सैंपल। मैनी डिफरेंट टेस्ट exist to detect and measure almost any type of chemical component and measure almost any type of chemical component in presence which in blood or urine component may include blood glucose, electrolytes, enzymes, hormone, lipid, that means amount of fat, other metabolic substance and protein, other metabolic substance are protein. The most commonly used in the specimen in include chemistry are blood urine में different test. ब्लड यूरिन सैंपल जो होगा क्लिनिकल केमिस्ट्री में जो सैंपल के रूप में यूज़ होगा और इसी से हम बॉडी में प्रेजेंस ब्लड या यूरिन की मात्रा से उसमें बॉडी के अंदर कितने केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं ये हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टेस्ट एग्जिस्ट टू डिटेक्ट एंड मेजर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ केमिकल कंपोनेंट इन ब्लड और यूरिन कंपोनेंट में इंक्लूड ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है ये निकाल सकते हैं. दैट मीन्स इसके लिए और है इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम, हार्मोन, लिपिड, अदर मेटाबॉलिक और प्रोटीन सभी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. और डिटेक्ट करने के लिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करेंगे. इसलिए इसको कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड और क्लिनिकल स्पीसीज को कोरिलेट करके यूज़ किया गया है.